हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. इन previous class we all discussed about biasing, the basics of biasing. In transistor there are four types of biasing. First one is your fixed bias, second one is your self emitter bias, and third one is your voltage divider bias. In your fourth one your DC feedback biasing. It is not your syllabus. तो पहले हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज योर फिक्स्ड बायसिंग सर्किट. ओके, इन योर फिक्स्ड बायसिंग सर्किट हम लोग का सर्किट एनालिसिस कैसे होता है, पहले हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करेंगे. तो फर्स्ट वन इज योर फिक्स्ड बायस सर्किट. फिक्स्ड बायस सर्किट. सेकेंड वन इज योर सेल्फ एमिटर bias circuit. Third one is your voltage divider circuit. Voltage divider bias circuit. And your fourth one is your DC feedback circuit. DC feedback circuit. Okay. Let me first explain the fixed bias circuit. Okay. अभी हम लोग देखेंगे व्हाट इज फिक्स्ड बायस सर्किट. तो उसका सर्किट एनालिसिस कैसे होगा. दिस इज योर VCC, दिस इज योर बेस RP, बेस रेजिस्टेंस, एंड योर वन करंट फ्लो IB. Your emitter is not present. This is your collector. Okay, this one is your transistor. Clear? So in your fixed biasing circuit, always VCC, RB and VBE, these are constant. Okay, in your fixed biasing circuit, always your VCC, RB and VBE is constant. That's why it is known as your fixed biasing circuit. अगर हम लोग सर्किट एनालिसिस देखेंगे, then this is your input loop and this part is your output loop. The left hand side is your input loop and the right hand side is your output loop. So applying KVL in input loop, किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ. ओके, तो क्या होगा, VCC माइनस ये IB/RB दोनों, सॉरी ये IB/RB दोनों रहेगा. IB/RB माइनस VBE इज इक्वल टू 0. ओके, अगर हम लोग यहाँ पे किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे, देन VCC माइनस IB/RB माइनस VBE इज इक्वल टू 0. देन अगर हम लोग इक्वेशन सॉल्व करेंगे, देन IB/RB इज इक्वल टू VCC माइनस VBE. देन IB इज इक्वल टू VCC माइनस VBE बाय RB. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. तो आज here VCC, RB and VB is always constant, so IB value is also fixed. That's why this circuit is known as your fixed biasing circuit. Okay, clear? In input loop, अगर हम लोग सर्किट एनालिसिस करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा बेटा, IB का वैल्यू हम लोग को पता चल जाएगा. तो व्हाट इज योर IB? IB is equal to VCC minus VBE divided by RB. Okay, सेम अगर हम लोग KVL अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग KVL इन आउटपुट लूप. अगर हम लोग आउटपुट लूप में KVL अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, VCC माइनस यहाँ पे RC है, यहाँ पे IC माइनस VBE इज इक्वल टू VCE इज इक्वल टू 0. देन IC इज इक्वल टू VCC minus VCE. So here IC is equal to VCC minus VCE divided by RC. This is your equation number 2. Clear?
इन योर फिक्स्ड बायसिंग सर्किट अगर हम लोग इनपुट में केवीएल अप्लाई कर रहे हैं देन क्या हो रहा है, बीसीसी माइनस आईबीआरबी माइनस वीबी इज इक्वल टू 0. देन योर आईबीआरबी इज इक्वल टू वीसीसी माइनस वीबी. देन आईबी इज इक्वल टू वीसीसी माइनस वीबी डिवाइडेड बाय आरबी. ओके, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. And your equation number 2, applying KVL in your output loop this side. Then VCC minus ICRC minus VCE is equal to 0. Then your ICRC is equal to VCC minus VCE and your IC is equal to VCC minus VCE by RC. Okay, clear? आप लोग चाहे तो ये डेरिवेशन जो मैंने बताया इसको कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं. Now, let me explain about your self emitter biasing circuit. Self emitter biasing circuit. Okay. Let me draw the diagram first. VCC, this side is your RB and IB. This is your emitter resistance RE. Here the current flow is IE. Here the current flow is your IE. This is your collector IC, RC. Okay, this is the circuit diagram of your self emitter bias circuit. Okay, this is the circuit diagram of your self emitter bias circuit. VCC is present here. It is your VCC. Then this part is your IBRB, base resistance and base current. This part is your collector resistance and collector current. And here is the emitter resistance and emitter current. This is your VBE. This is your VC. Okay. Same procedure. पहले हम लोग इनपुट में KVL अप्लाई करेंगे, then आउटपुट में KVL अप्लाई करेंगे. तो applying KVL in input, applying KVL in input. क्या होगा? VCC minus IB RB माइनस बीबी. ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा, बता रही हूँ मैं कैसे होगा. माइनस बीबी माइनस IE RE इज इक्वल टू 0. ओके, देन VCC माइनस IB RB माइनस बीबी. तो हम लोग को पता है I इज इक्वल टू IB प्लस IC इंटू RE इज इक्वल टू 0. तो VCC माइनस IB RB माइनस VBE माइनस IB प्लस IC इज इक्वल टू बीटा IB इंटू RE इज इक्वल टू 0. ओके, देन VCC माइनस IBRB माइनस BBE. अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे देन कितना होगा? इंडिविजुअली IBRE प्लस बीटा IB RE इज इक्वल टू 0. तो अभी क्या हुआ? दिस टर्म में जो IB प्रेजेंट किया और IB इज प्रेजेंट एंड here your IB present and here your IB present. जो IB टर्म है उसको हम लोग एक साइड कर देंगे. ओके, एंड क्या होगा? your IBRB प्लस IB RE माइनस बीटा IB RE इज इक्वल टू VCC माइनस VB. ओके, तो यहाँ पे अगर IBRB हम लोग IB कॉमन ले जाएंगे तो कितना होगा? RB
प्लस आर ई माइनस बीटा आर ई इज इक्वल टू VCC minus VB. Okay, then your IB is equal to VCC minus VB divided by RB plus RE minus बीटा RE. तो यहाँ से हम लोग RE भी कॉमन ले सकते हैं, VCC minus VBE divided by RB plus RE अगर हम लोग कॉमन ले जाते हैं 1 माइनस बी. ओके, तो हम लोग यहाँ तक भी रख सकते हैं. ओके, तो IB का वैल्यू हो गया योर IB's वैल्यू इज VCC माइनस VB डिवाइडेड बाई RB प्लस RE माइनस बीटा RE. ओके, अगर हम लोग KVL इनपुट में अप्लाई कर रहे हैं देन योर सेल्फ एमिटर बायसिंग में यहाँ पर एमिटर रेजिस्टेंस प्रेजेंट. तो आज एमिटर रेजिस्टेंस प्रेजेंट वी नो ऑलवेज यहाँ पे करंट फ्लो होगा बिकॉज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेजिस्टेंस टू अपोज द करंट फ्लो. तो यहाँ पर रेजिस्टेंस है, इसका मतलब यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है. ओके, देन VCC माइनस IBRB माइनस VB माइनस IRE इज इक्वल टू 0. देन आप लोग को पता है I इज इक्वल टू IB प्लस IC इंटू RE 0. तो अगर हम लोग ये तीनों IB टर्म को अलग कर देंगे देन फाइनली हम लोग को मिलेगा आउटपुट IB इज इक्वल टू VCC माइनस VB डिवाइडेड बाई RB प्लस RE माइनस बीटा RE. ओके, देन अभी हम लोग देखेंगे अप्लाइंग KVL इन आउटपुट लूप. तो क्या होगा, VCC माइनस ICRC माइनस BCE माइनस IE is equal to 0. Same procedure. Then your ICRC is equal to VCC minus VCE minus RE is equal to 0. Then your IC is equal to VCC minus VCE minus RE बाय IC. तो अगर हम लोग मॉडिफाई करके IE की कुछ वैल्यू पुट करना चाहेंगे तो हम लोग पुट कर सकते हैं क्योंकि हम लोग को पता है IE इज इक्वल टू IC प्लस IB. तो हम लोग को ऑलरेडी IB का वैल्यू मिल गया होगा जब हम लोग इनपुट सर्किट एनालिसिस कर चुके हैं. तो यहाँ पे हम लोग IB का वैल्यू मिल जाएगा. तो अगर हम लोग इसको और एनालिसिस करेंगे तो क्या होगा, IC इज इक्वल टू VCC माइनस VCE माइनस IB प्लस IC इज इक्वल टू बीटा IB इंटू RE डिवाइडेड बाई RC. तो IB का वैल्यू हम लोग को पता होगा बिकॉज पहले हम लोग इनपुट सर्किट एनालिसिस कर दिए हैं. तो हम लोग इसमें IB का वैल्यू पुट कर देंगे. तो हम लोग VCC का वैल्यू भी दिया जाएगा हम लोग को प्रॉब्लम में, और VCE VCC RC ये तीनों का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे. रेजिस्टेंस का वैल्यू हम लोग को क्वेश्चन में डाटा में गिवन होगा तो हम लोग इजीली IC का वैल्यू निकाल पाएंगे. ओके, तो आप लोग को पता चल गया फिक्स्ड बायसिंग सर्किट में क्या होता है. हम लोग का एमिटर रेजिस्टेंस नहीं होता है, ओनली और VCC RB RC उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग का रेजिस्टेंस एनालिसिस सर्किट एनालिसिस होता है. तो वहाँ पे हम लोग का क्या होता है, VCC RB एंड VB ऑलवेज फिक्स होता है, ऑलवेज कांस्टेंट होता है. सो दैट्स व्हाई क्या होता है वहाँ पे IB वैल्यू इज ऑलवेज फिक्स्ड. ओके, and your in self emitter biasing circuit here is your resistance emitter resistance you present and as your emitter resistance is present here तो compulsory यहाँ पे current flow हो रहा है. okay, because the function of resistance is to oppose the current. तो यहाँ पे अगर हम लोग सर्किट एनालिसिस करेंगे तो इनपुट में हम लोग को IB का वैल्यू मिल जाएगा. देन हम लोग को उसी की वैल्यू के हिसाब से जब हम लोग आउटपुट निकालेंगे तो हम लोग उसी वैल्यू को पुट कर देंगे. तो यो सर्किट एनालिसिस में जो डेरिवेशन है इसमें हम लोग का IC का वैल्यू इतना आया, VCC माइनस VCE माइनस IB प्लस बीटा IB इंटू RE बाई RC. तो हम लोग वैल्यू पुट करके आंसर निकल पाएंगे. ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसके हिसाब से जो प्रॉब्लम्स हम लोग को दिया जाएगा जैसे कि RB का वैल्यू दिया जाएगा, RC का वैल्यू दिया जाएगा एंड RE का वैल्यू दिया जाएगा. आप लोग को बोला जाएगा IB का वैल्यू निकालो. ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसी तरह का सर्किट सॉल्व करेंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे
योर फिक्स्ड बायसिंग सर्किट को लेके एंड योर सेल्फ एमिटर बायसिंग सर्किट को लेके। देन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। ओके, क्लियर। एंड वन थिंग मोर, क्या होता है जब आप लोग VB कंसीडर करते हैं, जब आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो VB का वैल्यू हमेशा आप लोग अज्यूम करेंगे 0.7 वोल्ट और 0.3 वोल्ट। अगर क्वेश्चन में आप लोग को कोई डाटा दिया नहीं जाएगा देन क्या होगा, आप लोग 0.7 और 0.3 VB का वैल्यू अज्यूम करेंगे। एंड वन मोर थिंग, क्या होता है जब आप लोग को बीटा IB और IC का वैल्यू निकालना पड़ेगा, बीटा का प्रॉब्लम जब आप लोग सॉल्व करेंगे आप लोग को बीटा की जरूरत पड़ेगा। बीटा, अल्फा, गामा हम लोग पढ़े थे ना एम्प्लीफिकेशन फैक्टर में, रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा, बीटा एंड गामा, 2002 एम्प्लीफिकेशन फैक्टर्स। तो उसमें हम लोग को क्या होगा, बीटा का वैल्यू अगर क्वेश्चन में दिया नहीं जाएगा तो हम लोग ऐसे निकाल लेंगे, IC/IB करके हम लोग बीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। तो अगर हम लोग किसी क्वेश्चन में बीटा का वैल्यू दिया जाएगा देन यो IC और IB ये दोनों में किसी और का वैल्यू दिया जाएगा तो हम लोग को बोला जाएगा दूसरे का वैल्यू निकालो। तो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, कैसे, जैसे कि योर IC/IB इज इक्वल टू बीटा, देन IC इज इक्वल टू बीटा IB। क्लियर। तो अगर किसी एक का वैल्यू दिया जाएगा तो हम लोग दूसरे का वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। ओके, अगर बीटा का दिया जाएगा तो हम लोग IC और बीटा और IC का दिया जाएगा तो IB का निकाल सकते हैं, और IC और IB का दिया जाएगा तो बीटा का निकाल सकते हैं, बिकॉज बीटा इज जो IC/IB। तो अगर तीनों में से किसी दो का वैल्यू दिया जाएगा, किसी एक का हम लोग को निकालना पड़ेगा क्वेश्चन में, हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए साइंटिफिक कैलकुलेटर का जरूरत पड़ेगा। ये सब आप अपने पास रख के प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। ओके, अगर आज के क्लास में कुछ भी डाउट रहा तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।